Hello everyone, good evening, and hope you are doing well. In the meanwhile, when the other participants join, let's give them some space and we will be starting shortly till 4 Good evening everyone. On behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, I would like to welcome all the attendants present here. I am Payal Misri. Today's session is going to about Master e-way bill and e-invoicing Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's take an introduction of Raj Lakshmi. RSPL is into various segments to serve its customer like sales, service, solutions, implementations, and development. We are partners to multiple OEM like 5-star Tally certificate partner, channel partners from SAP B1, gold partners from Bittrex 24, and channel partners from ERP Web. I am conducting today's sessions is PPT by Mr. Tathagat. So Tathagat, are you here? Yes, ma'am, I'm here. Okay, and live demo sessions by Raju. So Raju is here. Yes, ma'am. Okay, so Tathagat, are you available? So please go ahead. Yes, I'm sharing my screen. Wait. Is my screen visible? Yes, visible. Yes, thank you. So, hello guys. Welcome to the Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Here is our Raj Lakshmi family, and today's topic is GST e-way bills and invoicing in the Tally Prime. So first, you have to activate the GST for your company, so that can you generate the GST returns in the available ledger, stock items, and transactions. So first, you have to activate and configure GST for your regular dealers. So open the company for which you wanted to activate the GST, then press 11 of means features to activate GST, as you can see in the photo, this PPT. So you have to activate a GST to yes, then generate e-way bill with a Tally Prime. So e-way bill is a document you need to carry when you transport goods from one place to another place. In the Tally Prime, now you can generate e-way bills with the help of direct API users, and Tally Primes offers a very simple and smooth e-way bill experience for its users. So ई-वे बिल एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसको आप ट्रांसपोर्टिंग में कैरी करना पड़ता है, और आप टैली प्राइम से डायरेक्टली ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई यूजर्स, और ये टैली ऑफर्स करता है स्मूथ एंड simple experience to the customers. Now, Tally Prime e-way bill configuration. So initial step including registration on e-way bill portal and simple one-time configuration in the Tally Prime. सिंपल एक वन टाइम प्रोसेस रहता है ये। पोर्टल पे आपको सिंपली जाना है ई-वे बिल पोर्टल पे, और फिर आपको लॉग इन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी के लिए, और आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके जो भी मोबाइल नंबर है रजिस्टर उस पर। देन आपको ओटीपी रिसीव करना है, आपको फिर वेरिफिकेशन करके आपको एक स्क्रीन दिख जाएगी ऑप्शन, जैसे कि आपको सिलेक्ट करना होगा प्रेफर जीएसपी। सो फिर आप सिलेक्ट करेंगे, वो न्यू करेंगे, सिलेक्ट और न्यू कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो उसमें, एंड देन आपको वहां पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये जो जीएसपी है वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके जो चॉइस का है वो आपको डालना है, और देन यू कैन क्लिक टू ऐड। एंड इसमें एक नोट है कि आपको एपीआई यूजर जो एपीआई यूजर क्रेडेंशियल रहेगा वो आपको ई-वे बिल क्रेडेंशियल से डिफरेंट रहेगा। सो बस इतना ही ये प्रोसेस है ई-वे बिल का कॉन्फ़िगरेशन का। फिर बाद में आप कंप्लीट कर सकते हो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इन टैली प्राइम। नाउ ई-इनवॉइस। Invoicing is a system that allows the user's registration portal, means IRP, to electronic verify the B2B invoices. Now, electronic invoices or e-invoicing is a process of uploading all your B2B transactions, means it includes sales invoice, credit and debit notes made to companies, including export, in the IRP, means invoice registration portal for the authentication. For every invoice uploaded and after authentication, IRP issues an unique IRN code जो invoice reference code number पे रहता है, reference number. This IRN has been converted into QR code along with the
other invoice information and printed on the face of invoice. जैसे आप इनवॉइस करेंगे तो IRN जो नंबर रहता है उसका आप क्यूआर कोड वहां पे आपका इनवॉइसिंग का आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा आपके बिल्स के नीचे. Then how to generate invoice in Tally Prime. So generating invoicing in Tally Prime is extremely simple as we discussed. With it's a one time setup. एक वन टाइम सेटअप रहता है सेम ईवे बिल की तरह ही रहता है इसमें. और आपका सिर्फ इसमें 3 स्टेप रहता है. फर्स्ट आपको अनेबल, देन रिकॉर्ड एंड देन प्रिंट. ये स्मूथ एक्सपीरियंस टैली प्राइम प्रोवाइड करता है. अब आते हैं हाउ टू जनरेट इनवॉइसिंग इन टैली प्राइम. सो सबसे पहले जैसे आप हमने ईवे बिल किया था यस को, आपको इनवॉइसिंग का भी वहां पे अवेलेबल ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आप यस करना है. और अगर आपको ईवे बिल भी एप्लीकेबल होगा तो आप ईवे बिल को भी यस कर सकते हो. और फिर रिकॉर्ड आप जैसे यूजुअली करते हो एंट्रीज वो आपको करना है. और बाद में एंट्रीज होने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इनवॉइसिंग जनरेट करना है या नहीं. तो आप सिंपली यस पे कीजिएगा और दैट्स इट. जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टैक्स इनवॉइस के यहाँ पर क्यूआर कोड इनवॉइसिंग का आ जाएगा और ये पोर्टल पे आपका हो जाएगा. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. नाउ इट्स अप टू यू राजू. Thank you, Tathagat. Good evening, everyone. My name is Raju. I am returning here from Rajlakshmi Solutions Private Limited. तो आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में हम ईवे बिल और ई इनवॉइसिंग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और उसका सेटअप कैसे रहेगा. 2 मिनट दीजिए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. हेलो पायल मैम, आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन. 1 minute. Please check again. Raju? हाँ, 1 मिनट मैम. Yes. यस मैम, माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, visible. ओके. तो सबसे पहले हमें इनवॉइसिंग के पोर्टल पे लॉगिन करके एपीआई यूजर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो हम टैली में करेंगे. तो टैली में सेटअप करने के लिए आपको F11 में जाके इनेबल जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज इसको यस करना है. इसमें यस करने के बाद ई इनवॉइसिंग डिटेल्स में आके आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल को यस करना है और कब से एप्लीकेबल करना है वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है. और इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस ये यहाँ पे डालना है. तो नेक्स्ट जो रहेगा, अगर आपको ईवे बिल भी जनरेट करना होगा तो आप ईवे बिल को एप्लीकेबल कर सकते हैं और कब से आपको एप्लीकेबल करना है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. जैसे ये कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स. तो यहाँ में हम इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है ईवे बिल के लिए, तो यहाँ पे हम वो फिल अप कर सकते हैं. और जो नेक्स्ट प्रोसेस है सेंड ईवे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस सेल ट्रांजेक्शन, इसको यस कर लेंगे. और प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस इसको यस कर लेंगे. तो ये प्रोसेस होने के बाद इसको सेव करने के बाद हम ईवे बिल कैसे जनरेट होगा और कौन सी मैंडेटरी चीजें हैं जो हमें एंटर करनी पड़ेगी वो देखेंगे. तो सबसे पहले मैं एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट की है. पार्टी सिलेक्ट करने के बाद लेजर सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट करता हूँ. तो यहाँ पे जैसे मैंने आइटम एंटर किया है तो क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं. और यहाँ पे जो भी लेजर्स है टैक्स लेजर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ. तो जैसे ये होने के बाद यहाँ पे एक विंडो एक ये आएगा कि आपको जीएसटी ईवे बिल और ई इनवॉइसिंग डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है. तो जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको ईवे बिल के लिए जो मैंडेटरी चीजें हैं वो यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है. जैसे यहाँ पे आपको जो अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी है तो आपको पार्ट भी फिल करना जरूरी नहीं है. अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं रहता है तो उस कंडीशन में आपको पार्ट भी फिल करना पड़ता है. तो यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ और जो मोड है वो यहाँ पे बाय रोड सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी व्हीकल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ. और व्हीकल टाइप जो रहेगा वो रेगुलर रख लेता हूँ मैं. जैसे एंटर करूंगा मैं यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी ई इनवॉइसिंग डिटेल्स रिलेटेड.
तो यहाँ पे आपको पार्टी का बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे, जैसे आप एंटर करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आपको ई इनवॉइसिंग और ईवे बिल जनरेट करना है या नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो तुरंत ही आपका लॉगिन डिटेल्स जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा। तो उस आपको एपीआई यूजर और पासवर्ड वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपका। तो तुरंत ही आप जैसे यस करेंगे तो आपका ईवे बिल और ई इनवॉइसिंग ये 1 क्लिक में जनरेट हो जाएगा। तो मेरा जो है वो ट्रांजैक्शन प्रॉपर नहीं था, तो इस वजह से वो अनसर्टन में चला गया। तो अनसर्टन ट्रांजैक्शन जो रहता है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है ये हम टैली में अभी देखने वाले हैं। जैसे कि मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाता हूँ। जीएसटी रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एक्सचेंज रिपोर्ट में ई इनवॉइस है, तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे अनसर्टन ट्रांजैक्शन आपको शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो इनवॉइस हमने बनाया है उससे रिलेटेड जो भी एक्सेप्शन ये आया है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि एचएसएन और एसएससी मिसमैच है और यहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं है। तो ये जो टीवी हमने स्टॉक लिया है तो उसमें एचएसएन हमने मेंटेन नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं एचएसएन जो है वो डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे फिर से वो विंडो ओपन हो जाएगी जिससे हम ईवे बिल और इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे मैं यस करूंगा तो यहाँ पे ईवे बिल एक यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो वो यहाँ पे डालना है और उस तरीके आपका ईवे बिल और इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ईवे बिल और ई इनवॉइस 1 क्लिक में टैली से जनरेट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you, Mr. Tathagat and Raju. So wonderful sessions. So I am thrilled to have you all here with us. Today we have the pleasure of introduction the Tally Capital team who are at the forefront of innovations and excellence in our industry. So Saurav sir, are you here? Saurav sir? Saurav sir? Saurav sir, are you here? पायल जी वो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। Yes. Saurav sir, are you here? Yeah, Payal, I'm here. Actually, you guys did not make me co-host, no? So I was not able to unmute. Can you hear me? Yes, sir. Go ahead. Hello, Saurav sir. Just one second. Okay. Screen दिख रही है? Yes. So hi everyone, मैं Tally Capital से सौरभ। So basically हमने Tally में एक एडिशनल फीचर ऐड किया है। जो लोग 5.1 पे होंगे उनको बाय डिफॉल्ट वो फीचर दिख रहा होगा, और जो लोग अर्लियर रिलीज में होंगे उनको वो फीचर डिप्लॉय करना पड़ेगा, तभी देख पाएंगे Tally Capital में। अगर आपको नहीं दिख रहा है और आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू टू डिप्लॉय दैट प्लगइन। सो बेसिकली Tally Capital जो फीचर है उससे आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आज के डेट में अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी तरीके की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आज आप कितने एलिजिबल हो, आप वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो बेसिकली आप वो जो डेटा जो आपका टैली पे डाला हुआ रहता है, जो ट्रांजैक्शंस डाले होते हैं, उसी के बेसिस में ये एलिजिबिलिटी चेक आप कर पाते हो। तो टैली के थ्रू आप अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो और अपने क्रेडिट रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हो। तो आई विल शो यू कि कैसे होता है वो। तो जब आप जनरली क्या होता है ना, कभी भी आप अगर चेक करते हो तो अपने लोन्स या अपने इस पे अप्लाई करते हो ना, तो वो आपके सिविल पे हिट करता है। बट जब टैली के केस में आप ये करोगे, टैली के थ्रू करोगे, तो ये आपके सिविल को नहीं हिट करता। तो आपकी वो इंक्वायरीज जो सिविल रिपोर्ट में जनरेट होती है वो नहीं दिखती है, और ये 2 मिनट में आपका एलिजिबिलिटी चेक हो जाता है। और इससे आपको कोई भी तरीके के ना मार्केटिंग कॉल्स या स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे। और ये डेटा भी क्या है ना, आपके पास ही आपके सिस्टम में लोकली रहता है, और पूरा प्रोसेस जो है ना एप्लीकेशन का वो पूरा डिजिटल है। और हम 4 लेंडर के साथ काम करते हैं: कोटक महिंद्रा बैंक, L&T फाइनेंस, फ्लेक्सी एंड बजाज फाइनेंस।
टैली एग्रीगेटर की तरह रोल प्ले करती है यहाँ पे। और आपको अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, बॉडी ड्रॉप लाइन, सीजीटी एसएमई जो गवर्नमेंट का अनसिक्योर्ड प्रोग्राम है अप टू 1 करोड़ वो भी अवेलेबल है। और आपका एमसीए जो रिटेलर की पॉश मशीन के ऊपर में जो लोन्स होते हैं अनसिक्योर्ड वो भी अवेलेबल है। सो बेसिकली एलिजिबिलिटी जब चेक करना चाहेंगे ना आप देखेंगे अभी आपके सिस्टम में ये टैली कैपिटल जैसा एक ऑप्शन आएगा, यहाँ भी आएगा और ऊपर बार पे भी आएगा। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं सो आप देखेंगे ये बैनर खुलेगा और आपका एक्चुअली में अभी प्री क्वालिफाइड जो लोन एक अमाउंट है ना आपके ट्रांजैक्शंस जो आपने टैली में डाल रखे हैं उसके हिसाब से वो ऑलरेडी दिखाएगा। तो देखिए वहां पे वो 21 लाख दिख रहा है और इसके नीचे ऑप्शन है चेक एलिजिबिलिटी लोन एप्लीकेशन, राइट। और राइट साइड में भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे लोन ईएमआई कैलकुलेटर है तो आप वहां से अपनी लोन ईएमआई भी चेक कर सकते हो। सो हम चेक एलिजिबिलिटी पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुलेगा जहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका आधार से लिंक्ड है, ठीक है, क्योंकि उसमें ओटीपी आती है। तो जब आप अपना मोबाइल नंबर डालते हो तो उसके बाद ये स्क्रीन आएगा ओटीपी का, आपको ओटीपी इसमें डालना है और फिर ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपना कंपनी का जीएसटी नंबर, आप कौन से सेगमेंट में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, होलसेल में हो, सर्विस में हो, ट्रेडिंग में हो, वो डालना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की केसेस में ये पैन नंबर भी और फॉर्म के केसेस में ये पैन नंबर भी ऑटो पॉपुलेट होगा। और या फिर पैन नंबर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो आपको वो पैन नंबर डालना है जो ओनर का है। यहाँ पे इंडिविजुअल पैन डालना है, कंपनी का पैन नहीं। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो भी आपको इंडिविजुअल पैन डालना है क्योंकि अनसिक्योर्ड में इंडिविजुअल का ही सिविल चेक होता है। तो जो पैन में जो आपका नाम जैसे मेंशन किया हुआ सेम नेम्स मेंशन करने हैं, मेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिन कोड और फिर ये ऑप्शन को यस करना है। दोनों यस करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपको ओटीपी मांगेगा, फिर ओटीपी आएगी। आप ओटीपी डालने के बाद में ये जो चेक एज पर कंपनी बुक्स जो दिया है ना उस पर क्लिक करना है। तो आपका जो टैली पे डेटा डाला हुआ है उस पर ही इमीडिएटली चेक हो जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी आई। देखिए जैसे यही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज जीएसटी सेल्स जो है वो आ जाएगा, आपका जो सेगमेंट था वो आ जाएगा और ईएमआई जो अभी आपकी चल रही होगी वो आ जाएगा और यहाँ पे एलिजिबिलिटी अमाउंट आ जाएगा। आप यहाँ तक करोगे तो कोई इशू नहीं, एकदम आराम से कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। देखिएगा राइट साइड में यहाँ पे सिविल रिपोर्ट का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सिविल रिपोर्ट भी फेच करेगा। तो सिविल रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से ये टैली के अंदर दिख रहा है, फिर आप राइट साइड में फुल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो पूरा जैसे नॉर्मल सिविल रिपोर्ट आता है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। दूसरा तरीका एलिजिबिलिटी चेक करने का है बैंक स्टेटमेंट। तो सेम स्क्रीन जो यहाँ तक आप जैसे आए हो ऐसे नॉर्मली आओगे और उसके बाद आप ना यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट आपको पहले से सेव करके रखना पड़ेगा। 1 साल का पूरा कंप्लीट 1 साल का ट्रांजैक्शंस का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखना है और फिर यहाँ से वो ऑप्शन चूज करना है एलिजिबिलिटी एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ खुलेगा, आपको अकाउंट टाइप चूज करना है। अकाउंट टाइप दो ही तरीके का हो सकता है, ओडी अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है और अगर कोई पासवर्ड है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है और फिर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि हाँ आपकी एलिजिबिलिटी इतनी आई। उसके बाद आप अप्लाई नाउ, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वो फर्दर प्रोसेस में जाएगा। हमको टैली कैपिटल में जो प्रोसेस साइकिल है वो बहुत क्लियर है कि हमारा इंटेंशन सिर्फ आपको ये जो हमारा फीचर है इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, आपको लोन की रिक्वायरमेंट अभी है फ्यूचर में वो आप पे डिपेंड करता है, बट हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, सिविल स्कोर का फुल रिपोर्ट पुल आउट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में या जीपीजी में सेव करके ऑनलाइन पूरे टैली के थ्रू ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते। एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में टैली के पास आते हैं। जब टैली के पास आते हैं तो हमारा खुद का फाइनेंशियल एनालिस्ट टीम है, हम लोग वो पूरा आपका डेटा और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। उसके थ्रू आपका किस लेंडर के पास में प्रोफाइल एकदम परफेक्ट बैठ रहा है उसकी मैपिंग करते हैं और फिर आपसे बात करके वो आपको एक कॉल करेंगे, कॉल करके आपको एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे और उसके बाद
अकॉर्डिंगली हम उस लेंडर को भेजते हैं और लेंडर का प्रोसेस वैसे ही जैसे नॉर्मल होता है, वो एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, आपसे आपसे एक पर्सनल डिस्कशन करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वो लोन का एक अमाउंट ऑफर करता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो उसके बाद वो सैंक्शन लेटर भेजेंगे। सैंक्शन लेटर भेजने के बाद अगर आप साइन ऑफ करते हो फिर ई मैच होता है और एक वीडियो केआईसी होती है। वीडियो केआईसी के बाद में वो लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया। गाइस किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या आप चैट पे भी डाल सकते हो, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। This session will be uploaded to our YouTube channel, so stay connected to our social media account. Thank you.